Hello everyone students, how are you all? I hope you all are fine. Good. So yesterday we have started the ninth chapter soil, and what we are learning that we have studied about the weathering process. What is meant by weathering process? Weathering means the soil formation process. Okay, in that the rocks breaks down by the action of wind, water and climate. Okay, and because of that breaking of rocks, what forms? Soil is forms. So we have studied that weathering process. Afterwards we have studied about the soil profile. हमने देखा था कि soil profile means क्या होता है, like the vertical sections of the soil we get different layers of the soil. Okay, that is the humus, water, clay, sand and gravel. By the figure 9.2 we have seen that one. Okay, now today we will continue our next topic, that is the soil profile only, and we will see in the detail the all the layers of the soil. Okay, so firstly tell me what is meant by horizons. Horizons means what? The layers of the soil are known as horizons. Okay, now you see in the figure 9.3, this figure diagram is of soil profile. Here the different horizons, A horizon, B horizon, C horizon and the bedrock is given. So we will see in detail what is contents in that. Okay, the uppermost layer, that means A horizon, uppermost horizon is generally dark in color, means the soil is in dark in color because what it contains the humus. Okay, उसमें ज़्यादा क्या रहता है? Humus रहता है, humus and minerals. So because of that humus makes the soil fertile. What is the function of the humus? क्या करता है soil को? It makes the soil fertile. Okay, and it provides nutrients to the growing plants also. Means this is the function of this you can say humus, कि वो सॉइल को न्यूट्रिशंस एंड प्रोवाइड करता है और फर्टाइल बनाता है. ओके, एंड दिस ह्यूमस इज प्रेजेंट इन द ए हॉरिजॉन, दैट इज वाई द सॉइल इज डार्क इन कलर. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टॉप सॉइल. हम उसको क्या कह सकते हैं? टॉप सॉइल कह सकते हैं. ओके, the next layer is having contained the less amount of humus. Okay, and generally it is harder than the A horizon. So this next layer is known as a B horizon. उसको क्या कहते हैं? B horizon और middle layer. Okay, afterwards the third layer is also known as सी हॉरिजॉन. जो नीचे वाली लेयर है नीचे की, उसको कहते हैं सी हॉरिजॉन. ओके, एंड व्हाट इट कंटेन्स, क्या रहता है इसमें? इट कंटेन्स द स्मॉल लम्स ऑफ रॉक्स एंड द रॉक्स विद द क्रैक्स एंड क्रिवाइसेस. ओके, उसमें छोटे छोटे स्मॉल लम्स होते हैं रॉक्स के. अंडरस्टूड? मीन्स इट इज अगेन हार्डर दैन द बी हॉरिजॉन. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स एट द बिलो, मीन्स एट द लास्ट लेयर विच इज प्रेजेंट, दैट लास्ट लेयर इज नोन एज अ बेड रॉक. Okay, that layer, this layer is very harder and difficult to dig. ओके, उसमें क्या रहते हैं? इट कंटेन्स द लार्ज पीसेस ऑफ द रॉक्स, इसलिए वो सबसे क्या रहता है? हार्ड लेयर रहती है. अंडरस्टूड? सो दिस इज नोन एज द सॉइल प्रोफाइल, मीन्स द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट वी स्टडीड. द फर्स्ट लेयर वी हैव स्टडीड, दैट इज ए हॉरिजॉन, विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जिसकी वजह से हम मोस्टली जो हमारे प्लांट्स रहते हैं वो कहाँ पे ग्रो होते हैं? ए हॉरिजॉन में. एंड दिस ह्यूमस गिव्स द न्यूट्रिशंस टू द प्लांट. ओके, afterwards we have studied the different layers, that is the B horizon, C horizon and the bedrock. Understood? So these are the different layers of the soil, and this is the whole diagram of the soil profile, figure 9.3. Okay, what is mean by soil? Soil means what? It's a mixture of rock particles and the humus. Understood? Rocks particles मतलब कि rocks के particles होते हैं. The particles of rocks are maybe vary in size, different size के हो सकते हैं. They may be small, they may be large. Okay, different size of small rocks particles along with the humus. This is known as a soil, and there are different types of soils are present. क्या डिफरेंट टाइप्स के सॉइल प्रेजेंट रहते हैं? लाइक द सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल. ओके, सो हियर आफ्टर वी विल सी विच सॉइल इज द गुड फॉर द प्लांट. अभी हम लोग फर्स्टली क्या देखेंगे? फर्स्टली वी विल सी अबाउट द ऑल द मीन्स द डिटेल्स ऑफ ऑल द सॉइल्स. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स यू विल कम टू नो दैट विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. ओके, अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट इज द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल कैसे होती है? यू नो वेरी वेल, सैंड पार्टिकल्स, they are large, quite large. कैसे रहते? लार्ज रहते. ओके, दैट मीन्स दे कैनॉट फिट क्लोजली टू ईच अदर.
उसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े रहते, मतलब क्लोज नहीं रहते. ओके, सो द स्पेस इन बिटवीन देम इज ऑल्सो लार्ज एंड दैट means air can pass through that particles of sand. Okay, एंड इफ़ यू विल टॉक अबाउट द वाटर, अगर हम वाटर ड्रेन करेंगे तो वाटर पास करेंगे तो क्या होगा, ऑल वाटर विल ड्रेन थ्रू इट. वाटर होल्ड का हो पाएगा क्या सैंडी सॉइल में? नो, बिकॉज ऑफ द लार्ज पार्टिकल साइज. इमेजिन अगर आपने सैंड पार्टिकल ली एंड आपने वाटर डाला, सो व्हाट विल हैपन, ऑल द वाटर विल ड्रेन थ्रू इट. सब पानी क्या हो जाएगा, पानी वाटर नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ द लार्ज पार्टिकल साइज. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द प्लांट्स. ओके, नाउ इफ़ यू विल टॉक अबाउट द क्लेई सॉइल, अगर हम क्लेई सॉइल के बारे में बात करते हैं, सो क्लेई सॉइल कैसी होती है? क्लेई सॉइल इज़ वेरी फाइन पार्टिकल साइज, हैव द वेरी फाइन पार्टिकल साइज. बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं. ओके, मीन्स दे आर वेरी टाइटली क्लोजली टू ईच अदर. अंडरस्टूड? एंड दिस क्लेई सॉइल कैन नॉट पास एयर प्रॉपरली थ्रू इट. एंड बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट द वाटर, अगर आप वाटर डालोगे तो क्या होगा, इट कैन होल्ड वाटर वेरी वेल. आप क्लेई में वाटर डालोगे, वाटर होल्ड कर लेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द फाइन पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज, बट एयर विल नॉट पास थ्रू इट. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर द प्लांट्स. बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट द लोमी, अगर आप लोमी के बारे में बात करोगे तो लोमी इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. वाई? बिकॉज लोमी इज़ नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड ऑल्सो डिफरेंट पार्टिकल साइज. ओके, सैंड एंड क्ले का मिक्सचर होने से क्या फ़ायदा होता है? इट हैव द एडवांटेज दैट इट हैव अ सैंड, दैट इज़ वाई इट कैन पास एयर थ्रू इट, एंड इट हैव अ क्ले सो इट कैन होल्ड द वाटर ऑल्सो. अंडरस्टूड? मीन्स वाटर भी होल्ड करता है एंड एयर पास भी कर पाता है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द गुड फॉर द रूट्स. इफ़ यू विल नॉट होल्ड द वाटर, रूट्स अगर वाटर होल्ड नहीं करेंगे, सो देन इट इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. एंड इफ़ यू विल नॉट पास मीन्स एयर विल नॉट पास थ्रू दैट रूट्स, सो अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्लांट्स. ओके, सो बोथ द थिंग्स आर नेसेसरी. जो दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है, वाटर होल्ड करना एंड एयर पास होना. ठीक है, सो बोथ कैन पॉसिबल इन केस ऑफ लोमी सॉइल ओनली, एंड दैट इज़ वाई लोमी इज़ अ मिक्सचर ऑफ sandy as well as clay. Okay, and this loamy soil is considered as a best soil for the plants. Understood? And also loamy contains what? It contains humus. Humus भी रहता है उसमें. We have studied that humus is a very good for the plant because it gives the nutritions. Okay, it provides nutritions to the soil. Understood? And one another property is that is soil loamy is it has the right water holding capacity, that which is very good for the plants. So that because of the which clay soil. Okay, so therefore now tell me students, which soil is the good for the plants? Loamy soil is good for the plant. सैंडी भी अच्छी नहीं होती है, सही नहीं है, और क्ले भी सही नहीं है, बट दोनों का मिक्सचर अगर हम लेते हैं तो वो मिक्सचर मतलब लोमी सॉइल, दैट इज़ द गुड फॉर द प्लांट्स. ओके, अंडरस्टूड? So today we have studied about the soil profile. In that we have studied the different layers of soil, and afterwards we have studied the types of soil. In that we have seen the three types of soil: sandy, loamy and the clay soil. Okay, now we will continue our next part in our next class. Okay, that is the properties of soil. Understood? I hope you have understood the today's topic. Okay, thank you.